So in today's class, I'm just scrolling the screen so that you know what we did in the previous session. Point of intersection of perpendicular bisector was circumradius. Of course, you know the circumradius is ABC by 4 area. Point of intersection of median was known as centroid, which will divide the median in the ratio of 2:1 towards vertex. And of course, we did this Apollonius theorem where 3 times the sum of the squares of the side is equal to 4 times the sum of the squares of the medians. And we did this derivation. Of course, as I told you, it's not going to be asked in the exam, but that certainly you need to know. And we also did point of intersection of altitude as orthocenter. We said that, you know, if it is inside the triangle, if it is an acute angle triangle, orthocenter will lie inside. If it is a right angle triangle, it will lie on the, at 90 degree. And if it is more than it's an obtuse angle triangle, orthocenter will lie outside. And we kind of studied these relationships, a couple of relationships in terms of angle O and angle A. And in orthocenter, the angle A and angle O will be supplementary, and in angular bisector, it will be 90 plus opposite angle ka half. We also studied 4-sided properties. We studied quadrilateral, trapezium, parallelogram, rhombus, rectangle, and then we kind of collated all these properties in the previous class, right? So this is what we were through in the previous session. In today's session, we have to cover circles and areas and volumes. So that is what we have in today's. Volumes would also include your mensurations. So we'll try to cover all this in today's session so that we can take care of our geometry. So let us say we are talking about circles. So we'll take a fresh ये उसमें डालने के लिए था, ये मेरे लिए नहीं है मेरे ख्याल से. हाँ, we're going to, so I'm going to take circles. So what is a circle? How do you define a circle? Yes, any ideas what is a circle? Circle can be defined as a locus of a point equidistant from a given fixed point. So it is locus. Locus का मतलब होता है path. तो मान लेते हैं ये circle है. This fixed point is known as center, and the distance from the center to the periphery is known as, this is center. This is known as radius. And this periphery is known as circumcenter, या फिर इसको हम पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. So this is defined as circle. Now, if you draw a line from an exterior point, if you draw a line which is touching the 2 points in the circle, then this line is known as chord. Now, if this line is coming from, let's say an external point, then this is known as secant. Let's say I have a line, which is joining the circle at a point. This is known as tangent. Right. So these are the lines associated with circles. So we will have certain properties in circle. That is what we are going to study in today's session. So let's say, we have a circle, right? And so we have a chord, right? A perpendicular on the chord will bisect the chord. This is the statement. So what is the statement? A perpendicular on the chord will bisect the chord. So this is what we have to learn. Perpendicular on chord will bisect the chord. इसका मतलब क्या है? हमने ये perpendicular draw किया है, ठीक है? Let us say center O. Let us say this is AB.
and this D. So we know it is given that OD is perpendicular. हमें प्रूव क्या करना है? Of course एग्जाम में टू प्रूव नहीं आएगा, बट समझाने के लिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो, अगर कभी भूल भी जाएं तो हम इसको हैंडल कर सकें। हमें देखना है कि क्या AD इज इक्वल टू DB होगा, राइट? हमें ये गिवन है। सो हाउ डू वी सी? यू सी if you draw this line, this is radius, right? This is radius, and if you draw this line, this is also a radius. So this is 90 degree, this is 90 degree. So what do we see? So two angles, right angle, ठीक है? Instead of right angle, let me write 90 degree, 90 degree. So you have 90 degree, 90 degree. You have capital R, and you have this common side, you know, common side. So these two triangles are congruent using RHS congruency, है ना? So if it is RHS congruency, then this side will become equal to this side using CPCT. CPCT क्या था? Corresponding parts of congruent triangles. यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारी फिगर आइडेंटिकल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कहा था दोनों फिगर एकदम सेम होंगी, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, सब कुछ 6 के 6 पैरामीटर्स बराबर होंगे जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में थी पढ़े थे। इसका मतलब है AD इज इक्वल टू DB। सो परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमें ध्यान होना चाहिए, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा कि बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं ये मेरे पास कॉर्ड है AB, ये मेरा सेंटर है O, और हमने यहां से एक बाइसेक्टर बनाया, राइट? तो बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हमें गिवन है, लेट अस से दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, लेट अस से इट इज, सो व्हाट इज गिवन टू अस? व्हाट इज गिवन? दैट AD इज इक्वल टू DB। और हमें क्या इसमें से रिजल्ट क्या रखना है? प्रूव दैट क्या है हमारे पास? टू प्रूव दैट हमारे पास ये है कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। नाउ वंस अगेन वी विल यूज कॉन्ग्रुएंसी। वी नो दैट दिस इज रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, सो रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। So this is radius, this is radius. So what we are given? R is equal to R, AD is equal to DB. It is given. And let us say this side is C. ये C है, ये भी C है। तो ये किस मेथड से कॉन्ग्रुएंस होगा? कॉन्ग्रुएंसी SSS कॉन्ग्रुएंसी होगी, है ना? तो SSS कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो इसका मतलब है AD इज इक्वल टू DB। सॉरी, हाँ ये तो गिवन ही है। SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है? और हमें पता है, लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। वी नो 1 इज इक्वल टू 2, कैसे? CPCT। एंड वी ऑल्सो नो 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है। इसका मतलब है दोनों एंगल को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। ये हमें ध्यान रखना है। तो बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर, ये याद रहेगा। तो ये दो रिजल्ट्स हैं। perpendicular on the chord will bisect the chord, bisector of the chord will be perpendicular, ठीक है? फिर नेक्स्ट रिजल्ट जो आता है वो आता है equal chords are equidistant from the center। क्या मतलब है इसका? let's say we write this, equal chords are equidistant from the center। Let us try to understand this। तो मान लेते हैं मेरे पास दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये है एंड लेट अस से एक कॉर्ड ये है। ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं AB है और ये मान लेते हैं CD है। तो व्हाट इज गिवन टू अस? AB इज इक्वल टू CD। हमें क्या प्रूव करना है? मान लेते हैं ये सेंटर होता, मान लेट अस से दिस इज द सेंटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर। तो मान लो इसका ये डिस्टेंस है, ठीक है? ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। तो अगर हम बोलते हैं ये हमारे पास लाइन है, एग्जांपल के तौर पे मान लो, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये हमारे पास लाइन है और ये मेरे पास पॉइंट है। मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो अब वो कौन सा डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है? ये डिस्टेंस भी हो सकता है। कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम?
हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस माना जाता है। तो ये पॉइंट है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन हम कौन सी दूरी मानेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें गिवन ए बी, हमसे ये कह रहा है, ये गिवन है ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। हमें ये देखना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। मतलब अब ये कैसे करेंगे? अभी हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमें पता है हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक तो 90 डिग्री है, तो पी डी इज इक्वल टू ओ क्यू बी, चलेगा? पी डी इज इक्वल टू क्यू बी, एंड दिस इज 90 डिग्री, and this is also 90 degree, and let me draw this line as radius. Let me draw this line. So these two triangles are congruent using what? RHS. If these two triangles are congruent, then can I say this length is equal to this length? So I'll have OQ is equal to OP CPCT. So what is important for us to remember that if the chords are equal, they will be equidistant from the center. So equal chords are equidistant from the center, right? इसका converse क्या है? Equidistant chords will be equal. Equidistant chords will be equal. So अगर chords equidistant हैं, तो कॉर्ड्स, अभी क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थे तो इक्विडिस्टेंट था। अब हमें क्या बताना है? इसका कॉन्वर्स। ऑफ कोर्स once again you are expected to simply know it. It is just that, you know, let's say, you know, this time ये प्रूफ सिर्फ इसका पर्पस इतना है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए इसको देखने का, और साथ साथ आप इसको देखते रहें और याद कर लें, इनकेस हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? अगर हम सब कुछ सेम लगाएं, इस केस में हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? गिवन है ओपी इज इक्वल टू, OP is equal to OQ, हमें इक्वल गिवन है, ठीक है? दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ वी नो this is given, this R is equal to R, and this is 90 degree, this is 90 degree. How half of OD chord equal to other half of OD? ये अभी दिखाया ना, परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, अभी प्रूफ किया है, देखो, परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। चूंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर। चूंकि ये गिवन है इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड, ओपी इज इक्वल टू OQ, और चूंकि ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 एंड ये रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है, ये 90 डिग्री, RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। इसका मतलब क्या है? PD इज इक्वल टू QB, कैसे? CPCT। लेकिन अगर हम इसको डबल कर दें तो ट्वाइस ऑफ PD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QB, बट ट्वाइस ऑफ PD इज नथिंग बट CD विच इज इक्वल टू AB। ये प्रूव करना है। तो हमें बेसिकली दो ही चीजें मैंने बताई हैं, उसका और कॉन्वर्स बताया, उसका प्रूफ बता दिया, ताकि हमें मतलब दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए तो भूल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। उसी तरीके से इक्वल कॉर्ड्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सिमिलरली इक्विडिस्टेंट कॉर्ड विल बी इक्वल। ये हमें यहां तक पता चलता है, ठीक है? ये हमारे कुछ सर्कल्स की बात होगी। सेकेंड, सेंट्रल एंगल। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, जो हम सब लोग बारी बारी हर जगह गलती कर रहे थे, पिछले दिन कल भी गलती कर रहे थे, वो है इंस्क्राइब्ड एंगल विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। तो इसमें क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल, तो इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी
हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। हमें ये देखना है इसका क्या मतलब है, इंस्क्राइब्ड एंगल और हाफ एंगल। ये शुभम हमें सिर्फ ये थ्योरम्स, हाँ क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। हमें प्रूव नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन कभी प्रूव में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि हमें उसको यूज करना पड़ेगा तो हमें उसका रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक। तो अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरे पास चाहे तो कॉर्ड है चाहे तो आर्क है, कुछ भी कह सकते हैं, मान लो ये आर्क है। तो ये जो आर्क पेरिफेरी पे एंगल बनाती है, ये जो आर्क पेरिफेरी पे एंगल बनाती है, इस एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। ये क्या है मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। और ये जो ये हमारा सेंट्रल एंगल है। अब हमें पता है, ये मान लेते हैं P है। सो वी शुड नो दैट एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल P। ये होता है रिजल्ट। कैसे होता है मैं समझा देता हूं। मान लेते हैं मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है, तो क्या ये इसको बाइसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम POA की बात करें, हम ट्राइंगल की बात करें POA, कैन आई से OP इज इक्वल टू OA? क्यों? क्योंकि रेडियस है। क्यों? इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो let me say this angle is alpha, so this angle is also alpha. Now if you look at this length, this is known as an exterior angle in a triangle. ये तो हमने देखा हुआ है कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 1 + 2। तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल 1 + एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही बात है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको छोड़ के जो बचे हुए दोनों एंगल उनका सम है। इस केस में 1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है मैंने इसको अल्फा प्लस अल्फा कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 2 अल्फा। ये समझ में आ रही बात? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, OP इज इक्वल टू OA, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये अल्फा, तो ये वाला कितना हो गया? 2 अल्फा। आ रही बात समझ में? ये कितना हो गया? 2 अल्फा। तो अगर ये 2 अल्फा हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज सब ऑफ इंटीरियर है, उसी लॉजिक से OP इज इक्वल टू OB। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये भी अल्फा होगा। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वी डोंट नो दैट PO इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, वी डोंट नो, right? Therefore this is not necessarily alpha, it could be something else. Let us say this is beta, but we know for sure if this is beta, this angle will also be beta. Why? Because OB and OP are radius, so it is an isosceles triangle. Similarly, if you look at this angle is exterior angle to these two angles, so this becomes 2 beta. So if you look at angle O, I can write it as 2 alpha plus 2 beta, which is 2 times alpha plus beta, right? यहां से हम ये देख पा रहे हैं। और ऊपर से अगर हम एंगल P को देखते हैं तो एंगल P मेरा आता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल P, सॉरी B नहीं P, ये मेरा बनेगा 2 टाइम्स एंगल P। सो दिस इज माय रिजल्ट, ये हमें याद रखना है। सो सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल, याद रहेगा, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल। इसका वाइस वर्सा ये भी है कि इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। ये दोनों बातें एक ही है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसी का अगर हम एक्सटेंशन और यूसेज देखें तो वो होता है कि इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क्स विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स। इसी का जो कॉरोलरी है, इसी का जो एक्सटेंशन है वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स, या मैं ऐसे कर देता हूं, इक्वल कॉर्ड्स या फिर इक्वल आर्क्स, एक ही बात है, विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स एट पेरिफेरी। मतलब ये है कि मान लेते हैं ये मेरे पास आर्क है AB, या चाहे कॉर्ड बना लो, एक ही बात है।
Let us say it is inscribing this angle. Equal chords, equal arcs, या एक चीज और भी हो सकती है, सेम chord भी आ सकता है. सेम chord, सेम का मतलब है मान लो यही chord है, ए बी है, ठीक है, इसको हम दूसरा एंगल इंस्क्राइब करा देते हैं, ये वाला. इसी से मान लेते हैं हमने एक और एंगल इंस्क्राइब करा दिया, मान लेते हैं ये वाला. तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे. बता सकते हो क्यों? क्योंकि इन सब का जो सेंट्रल एंगल है वो तो यही है. तो अगर इन सब का मैंने सेंट्रल एंगल लिया, मान लेते हैं ये सेंट्रल एंगल को मैंने एक बार के लिए मान लिया 2 थीटा, ठीक है, लेट अस से दिस इज 2 थीटा. इफ दिस इज 2 थीटा, अभी अभी हमने पूछा था सेंट्रल एंगल इज हाफ ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? थीटा. उसी चूंकि कॉर्ड सेम है, या तो ये कॉर्ड मान लो या उसको आर्क मान लो. ये 2 थीटा, तो ये कितना बन जाएगा? थीटा. तो ये कितना बन जाएगा? थीटा. यानी कि एक ही आर्क से अगर हम डिफरेंट एंगल इंस्क्राइब करेंगे तो हमारे एंगल्स इक्वल होंगे. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही आर्क लें. अगर हमारे दो अलग अलग आर्क्स हैं, दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं, लेकिन वो कॉर्ड्स अगर बराबर हैं, तो भी ये रिजल्ट हमारा वैलिड है. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, मान लेते हैं एक आर्क मेरा ये है, ठीक है. सो लेट अस से दिस इज ए बी, राइट, एंड लेट मी से आई हैव अ सी हियर, अ डी हियर. इसको आर्क भी मान सकते हैं और कॉर्ड भी मान सकते हैं. मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया. Let's say this angle is theta 2 and let us say this angle is theta 1. हमें क्या पता है? हमें पता है AB is equal to CD. तो जो इसका एंगल इंस्क्राइब्ड है, यानी कि जो एंगल AB है, वो मेरा क्या है? थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2. सो इसका मतलब है इक्वल कॉर्ड्स, ऊपर भी लिखा हुआ मैंने, कॉर्ड्स विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स. ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स विल इंस्क्राइब इक्वल एंगल्स. Okay, now if somebody says equal chords, but if they are equal chords in two different circles, will it be valid? Will the same result be valid for two different circles of different size? Say for example, this is one circle. मान लेते हैं आर्क ए बी है और यहां आर्क ए बी है, सी डी है. नाउ वी नो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, लेकिन इसका रेडियस इज नॉट इक्वल टू इसका रेडियस. तो क्या इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल होगा? ये इक्वल होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 1. लेकिन अगर, बिल्कुल सही शुभम, लेकिन अगर ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते तो ये बात सच हो जाती. समझ में आ रहा है? अगर ये कैसे सर्कल होते, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते, तो ये बात सच हो जाती. यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक बार देख लो क्विकली. ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. ठीक है, बिल्कुल सही. So then there is something known as an alternate segment theorem. And before that, radius on the tangent will always be perpendicular. ये याद रखना है आपको. इसका क्या मतलब है? ये मान लो मेरे पास एक सर्कल है,
ये मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये मेरा सेंटर है, और मैंने सेंटर से एक रेडियस बनाया, ठीक है, ये रेडियस है, कहाँ पे जा रहा है, इधर। तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो हमेशा 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ही होता है कि किसी एक पॉइंट पे एक लाइन जा रही है जो कि उस पर परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा रिजल्ट है, रेडियस ऑन द टेंजेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलता है, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, इस यहां पे मैंने कोई एक, मान लेते हैं, टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मैंने कोई कॉर्ड बनाया, ठीक। अब इस टेंजेंट और कॉर्ड का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये थ्योरम बोलता है कि दिस कॉर्ड विल इंस्क्राइब एंगल थीटा इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये भी थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट made by will inscribe same angle in alternate segment। क्योंकि ये जब कॉर्ड बनाते हैं ना तो नीचे वाला इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो, अभी मैंने शायद बताया नहीं, ये लाइन खींचेंगे तो ये एक सेगमेंट है, ठीक है। और ये ऊपर वाला, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से एक सर्कल होता है, हम कॉर्ड बनाते हैं तो ये सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, अभी हम इसको भी देखेंगे। तो ये एक हमारा रिजल्ट है, क्या बोलता है? एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इन अ सेगमेंट विल बी सेम एज द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो हाउ डू वी डू दिस? ऑफ कोर्स नो प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट इन द केस फॉर एक्सप्लेनेशन। मान लेते हैं ये सेंटर है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया, मान लेते हैं सेंटर ओ है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया। अभी अभी मैंने बताया कि ये 90 डिग्री होगा। अगर ये टोटल 90 है, उसमें से ये थीटा है, तो बचेगा एंगल, ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ये वाला। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने ये रेडियस बना कर दिया, ये भी रेडियस बना दिया, चूंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा? व्हाट इज एंगल ओ? तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 में से, अगर मैं इन दोनों का सम माइनस कर दूं, यानी 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो मेरा काम चल जाएगा। कैन आई से दिस इज 180 माइनस ऑफ 180 प्लस 2 थीटा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो एंगल ओ की वैल्यू बनेगी 2 थीटा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि जो सेंट्रल एंगल है इज ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, सो एंगल पी कितना हो जाएगा? एंगल पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 थीटा। तो एंगल पी कितना हो जाएगा? थीटा, विच इज सेम एज एंगल, लेट अस से दिस इज एंगल, मान लो इसको ए बोल देते हैं, विच इज सेम एज एंगल ए। ये मान लो ए बी कॉर्ड। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट alternate segment theorem। सिमिलरली एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन हम उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं। एंगल इन ए सेमी सर्कल, मान लो ये सेम,
आपको पता है चूंकि ये कॉर्ड है, ये सेमी सर्कल में आधा, तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री है, सॉरी। अगर ये कोई भी एंगल आप इंस्क्राइब कराओगे इससे, मान लो हमने ये एंगल बना दिया, ठीक है, हमने ये एंगल बना दिया, तो ये एंगल कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा 90 डिग्री। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर सेमी सर्कल बोलेगा, ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर की एंगल बात करेगा, तो आप ये ध्यान रखना यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कोई भी आप फिगर बना लो, सारे 90 डिग्री बनेंगे। तो ये एक बेसिक सा रिजल्ट होता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऑफ कोर्स यू वुड नो इट, बट देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एंड रिकॉल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है हमें। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है? सर्कल्स की। तो जब हम सर्कल्स पढ़ते हैं, इसके अंदर एक दो चीजें और, लाइंस और सर्कल्स की हम बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीकेंट आपको समझाया था, तो सीकेंट के बारे में आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं P. Let us say it is cutting the circle at 2 point AB, and there is another line, let us say this, it is cutting the circle at CD. ठीक है, so the result is, I mean, PB and PD are known as secants. So the result is PA into PB is equal to PC into PD. This length divided by this total length is equal to this length into this length. Of course, this is an application of similarity of triangles. Now, if you want, we can, do the proof as well, but चाहिए कर लोगे? चलो मैं एक बार करा देता हूं ताकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं ये C और D मिलके एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लेते हैं C और D पे मिलके T पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? C and D are getting replaced by T. So my new result will become PA into PB is equal to PT square. Now, of course, PT is a tangent, so you need to understand this. ठीक है, तो एक रिजल्ट ये भी आता है। यहीं से अगर मैं दोनों को टच करा दूं, मान लेते हैं एक लाइन मैंने यहां टच करा दी, लेट्स से मान लो मैंने टच करा दी, मान लो S, तो कहना से यहां पे बनेगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। इसका मतलब है PS इज इक्वल टू PT। इसका मतलब क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो हमेशा इक्वल होता है। ये हमारा एक रिजल्ट बन गया, यानी कि हमें हमारे कोई भी पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये दो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। अगर ये इंटरसेक्शन अंदर होता, जैसे ये P बाहर है ना, अंदर होता, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, और हमारे पास एक कॉर्ड ये है, ये हमारे पास AB कॉर्ड है मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ये कॉर्ड AB था ना, ये AB था, और एक कॉर्ड मान लेते हैं CD है, और ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वही है, ये CD बस बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अंदर है। तो भी जो रिजल्ट है ना, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। This length into this length is equal to this length into this length. आ रही बात समझ में? कर लोगे इसको? ये रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉर्ड का, राइट? ओके, देन वी कम डाउन टू टेंजेंट्स। अभी मैंने जैसे आपको टेंजेंट बताया कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की बराबर होगी। हम पेयर ऑफ सर्कल्स पे टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
एक सर्कल ये है एंड लेट अस से एक सर्कल ये है, ठीक है। तो इसमें हम दो डायरेक्ट टेंजेंट्स बना सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट, ठीक है। इसको, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं C1 है, इसका सेंटर C2 है, और ये मान लेते हैं इसका रेडियस है R1 है, और इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज C1 C2? C1 C2 is distance between two centers. ये दोनों सेंटर हैं, इनकी बीच की दूरी C1 C2 है, ठीक है। इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे ही मान लो हमने कुछ एक टेंजेंट ऐसे बनाया, ठीक है, और ऐसे ही मान लो मैंने एक टेंजेंट कुछ ऐसे बनाया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के नाम से जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ही बनता है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसमें से बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बड़ा है या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा है? बताओ, आंसर भेजो लिख के फटाफट। ओके, सो इसमें अगर हम देखते हैं दो एक्सटर्नल सर्कल्स हैं तो हमारे पास नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में देखो प्लस वाली चीज माइनस हो रही है, यानी C1 C2 दोनों में सेम है। उसमें से क्या घट रहा है, इसमें छोटी वैल्यू कम हो रही है, इसमें बड़ी वैल्यू कम हो रही है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेट। ऑब्वियसली देखो ये चीज सेम है, इसमें से ये छोटी चीज माइनस हो रही है, इसमें से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो बड़ी चीज माइनस होगी तो छोटी चीज बचेगी, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो अगर दो एक्सटर्नल सर्कल हैं, अगर वो दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो क्या सिचुएशन बनेगी? मान लेते हैं एक सर्कल ये है और उप्स दूसरा सर्कल मान लेते हैं ये। तो इसमें इस केस में हमारे पास दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे। सो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से अगर मेरे पास दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्टिंग है, उस केस में हमारे दो डायरेक्ट बनेंगे और जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक सर्कल ऐसे है और हमारे पास एक सर्कल ऐसे है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें मेरे पास एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा और जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेंगे। और अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रिक है, एक सर्कल यहाँ है
और दूसरा यहाँ पे है। तो इसमें 0 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा एंड 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा। इसका मेथड है। ठीक है, ये हमारा कुछ टेंजेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बताइए यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है हमें? तो ये सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हमने जो पढ़ा ये सारी सर्कल से और लाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। अब हम सर्कल का एक बार पेरीमीटर, सेक्टर्स और एरियाज देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाए चीजों को लेके। लेट अस से मैंने जैसे अभी आपको शुरू में बताया कि एक सेक्टर है, एक सेगमेंट है, तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक सर्कल है, तो हम इस यहाँ पे एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये लेट से ये आर्क ए बी है, ठीक है। तो जो सेंटर पे मान लेते हैं एक एंगल थीटा बनाती है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, ये एक एंगल थीटा बनाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेजर ऑफ आर्क ए बी, ऐसा लिखते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज थीटा, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज थीटा। सो इफ दिस आर्क विल डिवाइड दिस सर्कल इनटू टू, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। मेजर ऑफ आर्क हो गया, जो ए बी है हम इसको बोलते हैं माइनर आर्क। जो ये बड़ा वाला है, मान लो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन 3 अल्फाबेट्स, तो जो जो 3 अल्फाबेट में रिप्रेजेंट होता है उसको हम मेजर आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे आर्क की लेंथ निकालूं, उसको हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, तो पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन एक पेरीमीटर में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालना है ए बी का। तो ए बी जो है, एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि हमें 360 डिग्री की लेंथ चाहिए, तो वो है 2 पाई आर। लेकिन हमें थीटा की लेंथ चाहिए, तो कितना, यूनिटरी मेथड निकाल सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं x इंटू 360 इज इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई आर, किया जा सकता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज दिस x? x इज नथिंग बट ए बी। इसको मैंने, ये x है। अच्छा, ये इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, कंफ्यूजन ना होए, मान लेते हैं a, ठीक। तो अगर मेरे को आर्क की लेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए, तो क्या बनेगा मेरा आंसर थीटा, क्योंकि आई एम लुकिंग एट ओनली विच पोर्शन, थीटा पोर्शन आउट ऑफ व्हाट पोर्शन, आउट ऑफ 360। लेकिन थीटा पोर्शन चाहिए 360, लेकिन क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी बनेगी 2 पाई आर। तो ये मेरा माइनर आर्क हो गया। अगर मुझे ए पी बी की लेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये कितना बनेगा 360 माइनस थीटा, तो ये मेरा बनेगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या लेंथ है, मेरा एपीबी की लेंथ है। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए रिजल्ट क्या हो गया, तो एक रिजल्ट तो यही है ना, और दूसरा रिजल्ट हमारा ये। उसी तरीके से हम एरिया के लिए भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये एरिया कौन सा हो गया मेरा, माइनर सेक्टर। तो अभी हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर। तो हमें पता है ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है 360 में से, उसका क्या चाहिए मुझे, एरिया चाहिए, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे मान लो मेजर सेक्टर चाहिए, तो बड़े वाला सेक्टर बनेगा, यानी थीटा कितना बनेगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा बनेगा मेजर सेक्टर। समझ में आ रहा है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, हम इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? उसी तरीके से ये पेरिफेरी था, उसी तरीके से हम सेगमेंट को देखते हैं। ये हमारा सेक्टर था, फिर हम देखते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता कहीं पे एक्सटेंड हो रहा है कुछ, तो रिजल्ट डिफरेंट हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस तो आएंगे ही। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है मेरा। अब हम देखते हैं सेगमेंट। मान लो ये मेरा कॉर्ड है ए बी,
ठीक है। और ये मान लेते हैं मेरा यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो सेंटर पे मान लेते हैं थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा है। अब मान लो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, इसका एरिया चाहिए मान लेते हैं सेगमेंट का। तो कैसे कर सकता हूं? क्या ना इसे मैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूं तो काम चल जाएगा। तो मान लो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो पूरा वाला पोर्शन था, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट अस अज्यूम दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी टेकन एज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर यानी ये दोनों की लेंथ है, हाफ दिस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। ये कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर है। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए मेजर, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए मेजर, तो ऑब्वियसली एक तरीका तो यह है कि पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट निकाल दूं, तो ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट पता है कौन सा है? मेजर सेगमेंट, ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ये ग्रीन वाला मेजर है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे सर्कल के एरिया में से येलो वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरा ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा। That is one way of thinking. The other way of thinking is I can take the area of major segment plus I can add area of triangle, तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो या तो मैं ये कर सकता हूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल से ऊपर वाला, प्लस ये ट्राइंगल को ऐड कर दूं तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये मेजर सेगमेंट आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, ध्यान रखना मैं क्या पूछ रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? एक तो ये लेंथ होगी प्लस ये वाली लेंथ भी होगी, बट हमें ये लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता। अभी पहले नीचे कर्व वाली लेंथ निकालते हैं। तो कर्व वाली जो लेंथ बनेगी वो तो हमें पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, प्लस मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, मैं एक बार साइड में इसको करके दिखा देता हूँ, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, बट आप रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन बस क्योंकि समझाना है मैं एक बार समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। मान लेते हैं ये मेरे पास ट्राइंगल है, लेट मी से दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, इसी चीज को मैंने बड़ा किया, ये थीटा है। मुझे चाहिए ए बी की लेंथ। मैं क्या करता हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां से 90 डिग्री। चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइड इसके बराबर, कॉमन साइड आर एच से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाली लेंथ मान लेते हैं मेरी ए है और ये वाली लेंथ भी ए हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अब और ये वाला भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये बनेगा थीटा बाई 2। अब एक ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ साइन थीटा बाई 2 है, ऑपोजिट साइड बनेगी ए, हाइपोटेन्यूज बनेगा आर, ए बाय आर। आर तो हमें पता है, तो मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूं, आर साइन थीटा अपॉन 2। लेकिन मुझे तो पूरी लेंथ चाहिए ए बी, ये पूरी लेंथ चाहिए ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है? 2a, तो 2a की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, 2r साइन थीटा बाई 2, ये बनेगी 2a। तो ये 2a क्या है मेरा, 2a इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो 2a क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज ए बी। तो मुझे यहाँ पे 2a चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये मेरा है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि ये वाला पोर्शन। उसी तरीके से अगर मेजर सेगमेंट चाहिए तो मेजर सेगमेंट क्या बनेगा मेरा, मान लेते हैं मेजर सेगमेंट मेरा ये बनेगा। एक तो ये वाली लेंथ बनेगी, ये पूरी लेंथ, प्लस वापस से ये लेंथ बनेगी, इस लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं। तो ये जो कर्व वाली लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है हमने, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, प्लस
हमें ये वाली लेंथ चाहिए, वो लेंथ हमारे पास है 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट है और लेंथ ऑफ मेजर सेगमेंट है। इस तरीके से हम दोनों का पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, तब तक देखता हूं कितने लोग उसको निकाल पाएंगे। जो मैंने पढ़ाया अभी इसी दोनों चीजों पे, उस पे से क्वेश्चन है। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है जिसका हमें एंगल नहीं पता, समझ में आ रहा है? सेंट्रल एंगल नहीं पता। ये मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं AB है, लेकिन हमें AB की लेंथ पता है L, यानी AB कितना है L, और ये OA रेडियस कितना है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R। आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको आप चैट बॉक्स में मेरे को फटाफट फटाफट भेजें। So looks like only few of you have done it. Let us just understand. You see, theta is not given to us. Please understand, this is not known to us. But we know the area of sector can be found out by theta by 360 into pi r square. So, but we need to know theta, right? But theta is not given to us. But we are given L, right? We have seen that value of L can be taken as theta by 360 into 2 pi r. Now, I may want to take this down. So I'll have L by 2 pi r as theta upon 360. Now, if you look at this theta upon 360, can it not be replaced by this? It can certainly be replaced by this. So once again, if I say area of sector, theta by 360 की जगह अपन लिखते हैं L by 2 pi r into pi r square. So r goes, pi goes. So I'm remaining with half LR. Once again, this is also a formula, but even if you don't know, I'm sure you will be able to handle. So half LR. So 3 or 4 of you have certainly given me an answer, but I was expecting a little more number of people to give me an answer to this. So this is what we have in terms of, areas and perimeters of circle. I'll now take the areas and perimeters of triangle, right? So let's say this. So obviously, no big deal in terms of perimeter. You all know things. So let us say this is my triangle side A, B, and C. As I told you, if this is capital A, this will be small a, this is small b, and this is small c. So perimeter is equal to A plus B plus C. There is something known as a semi perimeter. Semi S का मतलब होता है half. Semi का मतलब होता है half of a perimeter. So perimeter is A plus B plus C. तो उसका half कर देंगे तो ये semi perimeter हो जाएगा. Now the simplest possible thing of finding out area of a triangle, area, we know it is half into base into height, altitude, right? Now here what is important, that altitude must be corresponding altitude, as in, let us say this is perpendicular here. Let us say this is H1. So the area becomes half into A into H1. Now, if you want to take base as B, right? So in that particular case, my altitude will, let us say, become H2. So my area becomes half into B into H2.
And if you want to take the third altitude, let us say if you want to take the third base, so this let us say is h3, so this is nothing but half into base into h3, right? So this is nothing but area of triangle. Now, so these are three formulas for area of triangle. One result we can obtain from here is if you want to find out the value of a, it can be taken as 2a upon h1, right? So we can equate this value to a. So 2 is in the denominator, you take here 2 times a, and h1 is being multiplied, तो उसको नीचे ले जाओ. Similarly, if I want to take b can be taken as 2 times a upon h2. If I want to take c, it is taken as 2a upon h3. Now, if I want to take the ratio of the three sides, let us say I take a is to b is to c, you see that it is 2 capital A h1, it is 2 capital A by h2, it is 2 capital A by h3. So this results in a is to b is to c. This certainly can be cancelled. So this result is 1 by h1 is to 1 by h2 is to 1 by h3. So what is it trying to imply? It is implying that the ratio of the sides of the triangle is always in the inverse ratio of their altitudes. So the ratio of the sides of the triangle is always in the inverse ratio of its height. What does it mean? It means अगर एक particular triangle है जिसकी side सबसे बड़ी है, उसके ऊपर गिरने वाली जो height होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो साइज सबसे छोटा है उस पे गिरने वाली हाइट सबसे बड़ी होगी. क्या मतलब है इस बात का? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मान लेते हैं हमारा ये एक ट्राइंगल है और मान लेते हैं हमारा एक ये ट्राइंगल है. अब ध्यान से देखो, ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके ऊपर वाला जो एल्टीट्यूड है वो सबसे छोटा होगा क्योंकि ये साइड सबसे लंबी है. ये साइड सबसे छोटी नजर आ रही है तो इसके ऊपर गिरने वाला जो एल्टीट्यूड है वो सबसे बड़ा होगा, ये कहने का मतलब है. तो ये इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में अपने आप में एक रिजल्ट बन जाता है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस हियर. उसी तरीके से इसका एरिया और भी तरीके से निकल सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो हम s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देते हैं. तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर विच इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ये एक और तरीका होता है एरिया निकालने का. ठीक है, फिर एक एरिया हमने देखा, एरिया कैन बी टेकन एज ए बी सी अपॉन 4r. व्हाट इज आर? आर हमने पिछली क्लास में देखा था, आर इज सर्कम रेडियस. ये क्या है? सर्कम रेडियस है. एक और तरीका एरिया निकालने का, आर इंटू एस. यहाँ पे आर क्या है? अगर आपको याद हो पिछली क्लास में हमने देखा था, ये इन रेडियस था. ठीक है, और एस आपको पता ही है, मैंने अभी भी बताया सेमी पेरीमीटर. तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है. फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है. तो एरिया कैन बी टेकन एज हाफ इंटू बी सी, यानी बी इंटू सी मतलब दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू साइन ऑफ एंगल ए. इन दोनों के बीच में एंगल है ना, उसका साइन थीटा लेना है. ठीक है, वो सेम चीज बनेगी हाफ इंटू, अभी हमने बीसी लिया, अगर हम ए बी ले लेते हैं तो ए बी ले लेंगे, हाफ इंटू ए बी इंटू क्या बचेगा? साइन सी, ये बीच वाला एंगल बचेगा, विच इज सेम एज हाफ इंटू ए सी. अगर हमने ए और सी ले लिया तो बीच वाला एंगल साइन बी बनेगा. या अगर ये दोनों आर आर है, अगर आपको ध्यान हो हमने पीछे ये वाला फॉर्मूला किया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद है? तो हाफ इंटू दिस लेंथ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है. तो ये हमारा एक ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाता है. नाउ दिस फॉर्मूला जो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं, ये सारे स्केलन ट्राइंगल के लिए ट्रू हैं. अगर कोई चीज स्केलन के लिए ट्रू है तो आइसोसेलेस के लिए भी ट्रू है और इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू है, क्योंकि स्केलन मतलब तीनों साइड्स अलग हैं. ठीक है, तो अगर उसके लिए ही वैलिड है तो दो साइड सेम हो जाएंगी तो a इज इक्वल टू बी करना है, और अगर तीनों साइड सेम हो जाएंगी तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करना होता है. हालांकि हम एक बार फिर भी देख लेते हैं स्पेशल डायरेक्ट फॉर्मूलेज इक्विलेटरल ट्राइंगल के और आइसोसेलेस ट्राइंगल के, क्योंकि वो थोड़े से यूजफुल होते हैं, हमें डायरेक्ट आ जाता है. नहीं भी आता तो हम डिराइव कर सकते हैं एक बार के लिए. मान लेते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, ए है, बी है, सी है. तो ये साइड ए है, ये बी है, ये बी है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे इसका एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा. मुझे एल्टीट्यूड तो पता नहीं है, लेकिन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा. तो ये वाली जो लेंथ है ये a/2 हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी a/2 हो जाएगी. अगर मुझे h निकालना है तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम.
बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही करना पड़ेगा. सो कैन आई से एच कैन बी टेकन एज 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट. अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो इसका एरिया अगर हमें निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा a है, इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है. तो ये जनरली एक फॉर्मूला होता है a/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये किसका है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का है. ठीक है, तो ये हमें बस ध्यान रखना है, ये किसका है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, उसी तरीके से हम अगर हम यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले में a इज इक्वल टू b डाल देंगे तो भी वो आइसोसेलेस का बन जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें याद होना चाहिए. इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक बार हम इसको भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, आपको रिजल्ट हमेशा याद रहना चाहिए. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑब्वियसली हमें पता है कि तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं. So if all the sides are same, let us say this is A, B, and C. If this is A, this is A, this is A. Obviously, the same logic applies here. You will have to drop a perpendicular. Now, perpendicular will divide the opposite sides into two equal parts because it will divide into two congruent triangles. Now, if you want to find out H, now we know H is equal to under root of hypotenuse का square यानी A का square minus A/2 का whole square. So what do you get? You get under root of a square minus a square upon 4. So this is 4a square minus a square is 3a square upon 4 का under root. So my answer is root 3/2a. Now this is a standard result. You are expected to remember and know this. Don't forget that altitude of an equilateral triangle is always root 3/2a. What is a? A is always the side of the triangle. तो ये हमें हमेशा याद होना चाहिए. उसी तरीके से अगर हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड बनेगा. एल्टीट्यूड इज root 3/2a. So you want to see it will become ये 2 और 2 तो root 3/4a square. This is the area of equilateral triangle, and you are of course expected to always remember this area so that you are never confused. So that is how you try to solve this particular questions. इसको हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. सो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. बताइए, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? मैं 4 साइडेड फिगर्स का मैं एरियाज और पेरीमीटर्स पकड़ लेता हूं ताकि आपको वो भी हमें समझ में आ जाए. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी किसी प्रकार की? ठीक है, तो अब हम पेरीमीटर्स एंड एरियाज ऑफ 4 साइडेड फिगर को देख लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए. चलिए, वेरी गुड. अब हम देखते हैं पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ 4 साइडेड फिगर्स. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना के देख लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक फिगर है, मान लेते हैं ऐसा. ये लेटर से दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, लेट्स से ए बी सी. अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा तो ये ट्रेपीजियम सा नजर आ रहा है मुझको. मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, मैंने ये एक डायगोनल बनाया है ऐसे. ठीक है,
तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनाई है, एल्टीट्यूड इसका मान लेते हैं h1 है, और इसका हाइट मैं बना लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आ जाएगा, मान लेते हैं h2 है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। हाफ इंटू बेस मेरा बनेगा BC इंटू h1 ऊपर वाला ट्राइंगल, प्लस हाफ इंटू BC इंटू h2 ये नीचे वाला ट्राइंगल। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कहना इसे मेरे पूरे क्वाड्रिलेटरल का ट्राइंगल मिल जाएगा, हाफ BC इंटू h1 प्लस h2, ये काम चल जाएगा, राइट। लेकिन अगर हमारे पास ये बेस नहीं पता तो हो सकता है हमें दूसरा वाला बेस पता हो। अगर मैंने ट्राइंगल ये ले लिया तो ये ऊपर एक ट्राइंगल नीचे एक ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के ऊपर एक एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको मैंने बोला h3, और उसी तरीके से मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड बना दिया, इसको बोलते हैं h4। तो हम दोनों का ट्राइंगल ले लेंगे AC, हाँ AC होगा, बिल्कुल ठीक है। BC क्यों लिख रहा हूं मैं, हाफ AC माय मिस्टेक, हाफ AC इंटू h1, हाफ AC इंटू h2, हाफ AC, ठीक है। और ग्रीन वाला हम ले लेते हैं, तो ये बनेगा हाफ इंटू BD इंटू h1 h3 प्लस हाफ इंटू BD इंटू h4। तो यहां से हम हाफ और BD कॉमन निकाल सकते हैं, h3 प्लस h4 कर सकते हैं। तो एक तो एरिया यही बन जाएगा, एक एरिया ये बन जाएगा, प्रोवाइडेड हमारे पास दो अलग अलग डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों को, अगर हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, रेड वाले डायगोनल को अगर हम D1 बोल देते हैं और ग्रीन वाले डायगोनल को अगर हम D2 बोल देते हैं, और लेटर से इन दोनों के बीच में कोई एंगल है जो थीटा है। अब ये थीटा कौन सा एंगल है हमें वो पता नहीं है। उस केस में जो मेरा एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ D1 D2 sin theta. So what is theta? If this is theta, then this angle will also be theta, vertically opposite angles. So if this angle is theta, this will become 180 minus theta. Now, if this is 180 minus theta, this is also 180 minus theta. So what does it mean? It means it doesn't make any difference because this will become half D1 D2. अगर ये थीटा है तो ये थीटा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये बन सकता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब हमें साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है। If you know this, we know that sin theta is same as sin of 180 minus theta. So this will once again be half D1 D2 sin theta. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा एंगल कौन सा है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ एंगल्स बिटवीन देम। उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। नाउ सिंस दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर quadrilateral, since this formula is valid for quadrilateral, this is true for all four-sided figure, because we have studied that parallelogram is a quadrilateral, rectangle is a quadrilateral, square is a quadrilateral. तो वहां पे ये सारे के सारी जगह ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है हाफ D1 D2 साइन थीटा, हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑफ कोर्स वो ट्राइंगल में अगर हम बना पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। फिर हमारे पास आएगा ट्रेपीजियम। So let us say this is A, B, C. So these two are parallel lines, right? So of course, you know, the perimeter is nothing but A plus B plus C plus D, no big deal. So area can be taken as half into sum of parallel sides into में distance between them. So what is the distance between them? ये दोनों parallel line का जो ये perpendicular distance है, इसको हम distance बोलते हैं,
ठीक है, तो मान लेते हैं ये h है, तो इसका एरिया बन जाएगा एरिया इंटू हाफ इंटू a प्लस सी इंटू h। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन। फिर हमारा आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इस टाइप की हमारी कोई फिगर होती है, हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मान लेते हैं ये ए है ये बी है। तो पेरीमीटर मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, राइट। और इसके अंदर भी मान लेते हैं ये एल्टीट्यूड है, ये मान लेते हैं एच है। तो कैन आई से दिस ऑल्सो इज अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए ट्रेपीजियम। तो इसका जो एरिया बनेगा वो हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स ए प्लस बी, सॉरी बी नहीं लेंगे ए ही ले लेंगे, ये एच है हाफ। ठीक, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 2a इंटू एच, तो एरिया इज इक्वल टू ए एच। लेकिन अगर मान लो कई बार हमें ये एच नहीं पता और हमें ये एंगल पता है थीटा और साइड पता है बी, तो हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एच की वैल्यू होती है बी साइन थीटा। तो जो एरिया हो जाएगा वो a इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट द एरिया। तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं, a इंटू एच डायरेक्टली आ जाता है या ए बी साइन थीटा आ जाता है, प्रोवाइडेड h इज नॉट गिवन टू अस। एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ, तो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये ए है ये ए है ये ए है ये ए है। So let us say the figure is A, B, C, D. Obviously, you know the perimeter can be taken as 4 times area, right? उसका एरिया कैसे निकलेगा? इसके अंदर ऑफ कोर्स एरिया के लिए यही एक तरीका होता है। मान लेते हैं ये डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ मान लो D1 है, ठीक है, और ये डायगोनल है, मान लेते हैं इस डायगोनल की लेंथ D2 है। तो हमारा बनेगा हाफ D1 D2 साइन थीटा, वो जनरल बात थी। लेकिन जो थीटा होता है यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि in the diagonals of a rhombus will always be perpendicular to each other। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ D1 D2 साइन 90, और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हाफ D1 D2 बनेगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 D2। दैट इज हाउ यू ये मेरा एरिया ऑफ रोम्बस बनेगा। ठीक, उसी तरीके से अब हम आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उसमें एक दो चीजें देख लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मान लेते हैं मेरे पास रेक्टेंगल है, ये इसकी एल है ये बी है, तो चूंकि ये भी एल हो जाएगा ये भी बी हो जाएगा, तो मान लेते हैं फिगर है मेरी ए बी सी डी। ऑफ कोर्स यू नो द पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स एल प्लस बी and the area is always taken as length into breadth, right? Now if this is a let's say a normal rectangle, so let me just draw another normal rectangle। तो हाँ, डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है शुभम, सिर्फ हमें रिजल्ट्स पता होने चाहिए और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसकी लेंथ थी एल और ये इसकी लेंथ ब्रेथ थी बी। अब मान लेते हैं मैंने इसके अंदर एक रास्ता बना दिया ऐसे, ठीक है, और इस रास्ते की चौड़ाई इसको पाथ बोलते हैं, इसकी ए है, तो ये अंदर है, ध्यान रखना ये मैंने अंदर बनाया, ठीक है। अब मुझे इस रास्ते का एरिया चाहिए, मान लेते हैं
हमें सिर्फ ये वाला रास्ता चाहिए, अंदर वाला। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने का तरीका आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब ये जो लेंथ एल है, आप ध्यान से देखो, ये बाहर वाली लेंथ एल है, ये टुकड़ा ए था और ये भी ए था, तो एल में से ये दो ए खत्म हो गया, तो अंदर वाली लेंथ कितनी हो गई? मान लो अंदर वाली लेंथ में इस कलर से कर लेता हूं, अंदर वाली लेंथ होगी एल माइनस टू ए, और अंदर वाली ब्रेथ कितनी हो गई? ये ए है, ये हो गई बी माइनस टू ए। तो अगर मुझे एरिया ऑफ येलो पोर्शन चाहिए तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करना पड़ेगा ना। मैं इसको एक बार एल को मिटा देता हूँ, मैं ये एल है, तो आउटर एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इनर एरिया बनेगा एल माइनस टू ए इंटू बी माइनस टू ए, ये बनेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा एल बी माइनस टू ए एल माइनस टू ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जब माइनस करेंगे तो एल बी माइनस एल बी प्लस टू ए एल प्लस टू ए बी माइनस बी ए स्क्वायर, राइट। एल बी खत्म हो जाएगा, वी कैन ऑलवेज टेक टू के कॉमन, आई विल हैव एल प्लस बी माइनस, क्या कर दिया मैंने, फोर ए स्क्वायर है बेटा, ये फोर ए स्क्वायर, तो क्या लिख दिया मैंने, दिस इज बी ए स्क्वायर नहीं है, फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा टू ए। ये मेरा रिजल्ट है। ये कौन सा पाथ है मेरा? एरिया ऑफ इनर पाथ, ये क्या है मेरा? एरिया ऑफ इनर पाथ, ठीक है। ऐसे ही हमारे को निकालने को आ सकता है एरिया ऑफ आउटर पाथ। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर वैल्यूज होती है ना तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 टाइम्स द विड्थ निकालनी है। तो मान लेते हैं मेरा एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, जो मेरा पाथ है ना वो है ये बाहर वाला पाथ है, तो ये बाहर वाला पाथ मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो भी ए है। तो ये लेंथ है एल प्लस टू ए और ये ब्रेथ है बी प्लस टू ए। क्यों टू है? आपको पता है ये वाली लेंथ तो एल है, तो ये एक्स्ट्रा ए हो गया और ये एक्स्ट्रा ए हो गया, तो यहां से यहां तक का तो एल था, तो ये ए और ये एक्स्ट्रा हो गया। उसी लॉजिक से ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की बी थी, ये एक्स्ट्रा एल प्लस टू बी, ठीक है। अब हमें अगर ग्रीन वाला पोर्शन निकालना है तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करना पड़ेगा, यानी एल प्लस टू ए इंटू बी प्लस टू ए माइनस एल बी, हमें ये सॉल्व करना है। तो ये बनेगा एल बी प्लस टू ए एल प्लस टू ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस एल बी। सो एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे टू ए कॉमन निकाल के एल प्लस बी प्लस टू ए, ये आपका एरिया ऑफ आउटर पाथ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा एरिया ऑफ आउटर पाथ। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका, ये एरिया ऑफ इनर पाथ, ठीक। ऐसे ही अगर हमारे पास क्रिस क्रॉस पाथ आ जाता है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। क्रिस क्रॉस पाथ का क्या मतलब है? क्रिस क्रॉस पाथ का मतलब है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ये हमारे मान लेते हैं ये मेरे पास एक क्रिस क्रॉस पाथ है और ये मेरे पास एक क्रिस क्रॉस पाथ है, ठीक है। ये मेरी लंबाई एल है, ये मेरी चौड़ाई बी है, ये जो पाथ है ये ए है। तो अब हमें क्या चाहिए? मान लो आपसे कहा कि मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया कितना बनेगा? कहना ही से ये लेंथ है और ये जो चौड़ाई है वो ए है, तो दिस पाथ इज एल इंटू ए, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वाला चाहिए, तो ये जो हाइट है ये बी है, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो ये कितना बन जाएगा? बी इंटू ए। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप आ जाएगी,
उसमें से मान लो मेरे को ये जो स्क्वायर है ये माइनस करना है, क्योंकि मैंने 2 बार जोड़ दिया, येलो में भी ले लिया ग्रीन, तो माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए आएगा, यहाँ पे बनेगा एल प्लस बी माइनस ए, तो ये एरिया ऑफ क्रिस क्रॉस पाथ है। अगर ये मान लो यहाँ पे होता तो कोई फर्क पड़ जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसको मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे बना देते हैं, तो सेम चीज होती है, ये स्ट्रिप प्लस ये स्ट्रिप माइनस ये कॉर्नर, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ क्रिस क्रॉस पाथ इसको कर सकते हैं, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जिस तरीके से हमने स्क्वायर के लिए किया, रेक्टेंगल के लिए किया है, उसी तरीके से हम स्क्वायर का भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऑब्वियसली यू नो दिस, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दो चीजें मान लेते हैं, ये ए है, ये ए है, तो पेरीमीटर आपको पता ही है 4a बनेगा, दिस इज ए, दिस इज ए, लेट अस से द डायगोनल इज d, area is a square, or area can also be taken as half d square, right? Why half d square? Because you know d is equal to root 2 times a, so two ways of doing it. So a is equal to root 2 upon d, sorry, d by root 2. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा d by root 2 का होल स्क्वायर, so this is a square is nothing but half of d square. A square is area, this is area, so all these are areas of a square. Now whatever we have done earlier in terms of outer path and inner path, the same logic will be applied in area of square also, so I don't have to repeat it. बस जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो मतलब ऐड करनी है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करना है, उससे हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी 4 साइडेड फिगर का पेरीमीटर या एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर काइट का निकालना है तो हाफ d1 d2 sin 90 आ जाएगा, जो मैंने काइट पिछली क्लास में कहा था कि किताब में शायद नहीं दिया हुआ है काइट, लेकिन मान लेते हैं इसको हम काइट बोलते हैं, जहाँ पे दो एडजेसेंट फिगर्स आइडेंटिकल होती हैं। मान लेते हैं ये फिगर आइडेंटिकल है और इसको मैंने एक ऐसे बना दिया और इसको मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये वाली फिगर इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। अगर मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मान लेते हैं दिस इज d1, और यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं d2, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो इसका जो एरिया बनेगा वो हाफ d1 d2 बनेगा, बिकॉज ये 90 है। लेट अस से दिस लेंथ इज a, so this length will also be a, this is b, this is b, so the perimeter will be always become 2 times a plus b, so this will become kite. काइट के बारे में ये हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, यहाँ पे जब मैंने क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाया तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर लूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है और इसमें मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मान लेते हैं एक लेंथ ये है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर तो आपको पता ही है, साइक्लिक क्वाड, इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। व्हाट इज s? s is semi perimeter which is a plus b plus c plus d, ठीक है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अच्छा, सर्कल में जब मैं आपको करा रहा था, इसमें एक एलिप्स बच गया है, वो बता देता हूं। एलिप्स क्या होता है? अभी जैसे क्या, मैं सर्कल से इसको कनेक्ट कर दूंगा, मान लेते हैं ये, इसको एलिप्स बोलते हैं, ऐसा जो फिगर होता है। जो सर्कल होता है ना, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स।
क्या मतलब है, जैसे सर्कल में ये सेंटर है, तो सेंटर से एक लेंथ हम बना देते हैं, तो हम उसको रेडियस के नाम से जानते हैं। मान लो ये हमने बना दी, इसको रेडियस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है उसको हम 2b बोलते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है हम उसको 2a बोलते हैं। ठीक है, अब अगर सर्कल का अगर आपको याद हो, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर होता है, दो बार। तो इसमें एक रेडियस तो ये ए और एक रेडियस ये, तो इसका जो पेरीमीटर बन जाता है वो बनता है पाई ए प्लस बी। इसमें क्या है, ए प्लस बी जो है वो सेम है, इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर है, तो इसलिए पाई जो ये बनता है ना, पाई ए प्लस बी, तो पाई आर प्लस आर करके हम 2 पाई आर का फॉर्मूला निकाल देते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो पाई आर स्क्वायर बनता है, जो कि आपको पाई आर इंटू आर होता है। आर इंटू आर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एरिया बनता है वो बनता है पाई ए इंटू बी। इस केस में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, तो चूंकि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए पाई आर स्क्वायर आता है। इस तरीके से आप एलिप्स का पेरीमीटर और एरिया को याद कर सकते हैं, बिकॉज सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो एलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई ए इंटू बी, और पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, उसकी जगह हो जाएगा पाई ऑफ ए प्लस बी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ, कौन कौन चला गया, इतना क्या हैवी हो गया क्या आज की क्लास? अच्छा, ठीक है, बताइए, यहां तक समझ में आ रही है बात सभी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, मैं इस पे एक बार आपको पॉलीगन का एरिया और पेरीमीटर समझा देता हूं, उसके बाद हम अगली क्लास में वॉल्यूम्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। ओके, तो उसके बाद क्लास के अंदर जब मैं आऊंगा तो शेयर द पेज लाइक यस्टरडे, हाँ ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा ये शेयर। तो मैं एक बार आपको पॉलीगन के बारे में एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ पॉलीगन करवा देता हूँ, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी, मैनी साइडेड फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं, हम बेसिकली जो हमारे पास आएगा हम उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 साइडेड पॉलीगन है मान लो, तो 3 साइडेड पॉलीगन एक ट्राइंगल है, उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल का टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं 4 साइड की फिगर लेता हूं, मान लेते हैं, क्या ना इसे मैं 2 ट्राइंगल बना सकता हूं, तो टोटल इंटीरियर एंगल बनेगा 2 इंटू 180। अगर मान लो मैंने 5 साइड ले ली, तो 1 2 3 3 ट्राइंगल बना सकता हूं, तो टोटल इंटीरियर एंगल बनेगा 3 इंटू 180। मान लो 6 साइड्स हैं, एक, चार ट्राइंगल। एन साइड कितने ट्राइंगल बनेंगे, n-2 ट्राइंगल बने, तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, n-2 इंटू 1। ये टोटल इंटीरियर एंगल है, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी पॉलीगन के अंदर टोटल इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है।
ईच इंटीरियर एंगल। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, 3 साइडेड फिगर है तो 3 एंगल है। मान लो मैं नंबर ऑफ एंगल्स की बात करूं तो 3 है, 3 एंगल है। 4 साइड है, 4 एंगल है। 5 साइड है, 5 एंगल है। 6 साइड है, 6 एंगल। n साइड है, n एंगल है। तो चूंकि सारे एंगल्स बराबर हैं, ये ईच इंटीरियर एंगल। ठीक, किसी भी पॉलीगन के अंदर टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। सर जितने साइड लोगे उसमें से 2 माइनस कर दोगे उतने नहीं, इंटीरियर एंगल तो उतने ही होंगे जितनी साइड्स हैं। जितनी साइड की फिगर है ना उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे आपके। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। सो दिस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। 5 साइड्स इज इक्वल टू 3 एंगल्स एंड 6 साइड इज इक्वल टू, बेटा 4 एंगल्स नहीं, 4 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल माइनस हो रहा है, एंगल नहीं माइनस हो रहा है। देखो 3 साइड है तो एक ट्राइंगल बनेगा, 4 साइड है तो 2 ट्राइंगल बनेगा, 5 साइड है तो 3 ट्राइंगल बनेगा, 6 साइड है तो 4 ट्राइंगल बनेगा, 10 साइड है तो 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, तो n साइड है तो n-2 ट्राइंगल्स बनेंगे ना। ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल का जब सम लेंगे तो टोटल 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 साइडेड फिगर ले लेते हैं, मान लो ठीक है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है और ये अब इन सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ोगे तो टोटल 360 डिग्री बनेगा। ठीक, तो टोटल एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी 360 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इसका मान लो एक्सटीरियर है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बनता है। ठीक है, इंटीरियर प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए पॉलीगन्स के बारे में। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक पॉलीगन्स में? नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ पॉलीगन समझा देता हूं। मैं डिराइव भी करके दिखा दूंगा, बट फाइनली आपको क्या है कि उसका वो रिजल्ट याद होना चाहिए। डेरिवेशन इसलिए ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ज्यादातर एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे पॉलीगन्स में तो जनरली वो हेक्सागन पे आते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन भी आज करा दूंगा हेक्सागन पे जो आए हुए हैं, लेकिन जनरली हेक्सागन पे आते हैं। बट मैं आपको एक जनरल चीज समझाऊंगा ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो लेट अस से आई एम ट्राइंग टू टेक लेट से मैं एक ठीक है, ये हेक्सागन है मान लेते। तो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 टाइम्स है। हेक्सागन में तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये सिर्फ हेक्सागन है, मैं जनरल एक हेक्सागन का बता रहा हूं। एक सेकेंड, नाउ लेट अस फाइंड आउट दिस टोटल इंटीरियर एंगल। टोटल इसमें टोटल इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 ये बनेगा। और चूंकि 6 साइड्स हैं तो ये बनेगा, तो ये बनेगा 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18, 120। ये टोटल 120 डिग्री है। चूंकि ये ऊपर और नीचे, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? नो, अच्छा सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, तो मेरे पास ये हेक्सागन है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है। अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर वाला और नीचे वाला फिगर आइडेंटिकल है, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसी लॉजिक से ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब दो एंगल 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब है बेसिकली इन अ हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या कंसिस्ट करता है? 6। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना का एरिया होता है, √3/4a² इंटू 6 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा है एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। अब हेक्सागन में तो 6 बन गए, लेकिन अगर कोई और फिगर लेते हैं, पेंटागन वगैरह लेते हैं, तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा। और किसी भी पॉलीगन को एक सर्कल अगर हम बनाएं तो वो हमेशा सरकमस्क्राइब कर सकता है। मतलब कोई भी अगर हम पॉलीगन बनाते हैं तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल विच विल सरकमस्क्राइब द पॉलीगन। उसी तरीके से उसी तरीके से you can always draw a circle which will inscribe the तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है सेंटर से जो ये दूरी है ना, ये बराबर होती है। मान लो मैंने एक पेंटागन ले लिया, ठीक है, ये तो मैंने हेक्सागन के लिए डिराइव कर दिया। लेट अस से आई ट्राई टू टेक अ पेंटागन। उससे क्या, वो जनरल फिगर है, पेंटागन इज अ जनरल फिगर, तो उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने ऐसी फिगर बनाई, ना ये पेंटागन नहीं बनेगा। सो लेट्स से this is a pentagon, right? Let us say this is the center. This pentagon
will get divided into, 5 triangles. The pentagon will be divided into 5 triangles. Let us say this is side A. तो ये जो साइड्स हैं, चूंकि एक सर्कल सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब करेगा, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने भी आपको बताया कि एक सर्कल इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब करेगा। तो अगर एक सर्कल इसके बाहर बनाया जा सकता है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ये सारे रेडियस होंगे, समझ में आ रहा है? ये सारे रेडियस होंगे, ठीक है। ये साइड है और ये दोनों, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सका और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर सका तो मेरा हमेशा पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। तो पेरीमीटर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर तो हमें पता है कि 5a हो जाएगा, या फिर अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो na हो जाएगा। हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर ये एरिया निकाल पाया तो क्या बनेगा? n इंटू, मान लेते हैं मुझे टोटल एरिया निकालना है किसी भी फिगर का। मुझे क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है किसका? ऑफ पॉलीगन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? n इंटू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ रही बात? अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, मान लेते हैं। कौन सा टाइम? इसको बड़ा बना लेता हूं समझाने के लिए कि ये कैसे कर रहा हूं मैं। ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं बी। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे एल्टीट्यूड चाहिए होगा। एच कैसे निकलेगा? अभी मैं भी बताया था कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बाइसेक्ट करेगा a/2, a/2। हमें चाहिए एच। अब हमें पता है ये टोटल एंगल कितना होता है यहाँ पे। ये टोटल एंगल कितना होता है? ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक। कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 5 है। तो अगर 5 ट्राइंगल है तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, 6 है तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, और n है तो डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? n। ये तो पूरा एंगल है। ये कितना एंगल है? मान लेते हैं n साइडेड फिगर होती तो ये 360 डिवाइडेड बाय n होता पूरा। तो ये वाला और ये वाला अलग अलग है, तो ये वाला जो है इसका हाफ हो जाएगा, यानी 360 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 180 बाय n। तो ये एंगल कितना बन गया मेरा? ये एंगल बन गया मेरा 180 बाय n, ठीक। अब मुझे h और इसमें रिलेशनशिप निकालना है। तो बेसिकली tan थीटा एक होती है चीज, tan थीटा, थीटा यानी यहाँ पे बनेगा 180 बाय n इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड a/2 डिवाइडेड बाय h, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी a होल डिवाइडेड बाय tan ऑफ 180 बाय n। तो n की वैल्यू बन जाएगी a cot ऑफ 180 बाय n। ये क्या है? h है, ठीक। ये सब डिराइव नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बनेगा हाफ इंटू a इंटू h की वैल्यू बनेगी a cot ऑफ 180 बाय n, तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन 2 cot ऑफ 180 बाय n। ये मेरा बनेगा एरिया ऑफ अ सिंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल, और कितने ट्राइंगल्स हैं मेरे पास? n ट्राइंगल्स हैं, तो मेरा बन जाएगा n इंटू ये वाला a, n इंटू a। तो ये बन जाएगा n इंटू a की जगह अपन लिख सकेंगे a स्क्वायर बाय 2 कॉट ऑफ, सॉरी हाफ, इसमें से हाफ, हाफ a इंटू एच। तो यहाँ पे a/2 आ गया ना, ये a/2 मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये a/2 है, यहाँ पे a/2 है, तो ये बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई 4 हो जाएगा कॉट ऑफ 180 बाय n। सो माय एरिया विल बिकम na स्क्वायर बाई 4 cot of 180 by n। This is the area of a regular hexagon। ये शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं चाहता हूं आप इस बारे में, ठीक है। na स्क्वायर बाई
4 है, cot of 180y। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? So this is what is going to take care for today's class. I hope you have understood. If you have any question, queries, do let me know. Anything that you want to ask? Anybody? इसके बाद हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम्स बचेगा और हाँ बेसिकली वॉल्यूम्स बचेगा और फ्रस्टम बचेगा। वो हम जब भी मैं या तो हम इसी वीकडे में कर लेंगे ऑनलाइन ज्योमेट्री को, नहीं तो मैं संडे जब आऊंगा तो कर लेंगे, वो शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस क्लास, राइट? So thank you so much and have a nice day, guys.